Good evening and welcome to Blueprint Exclusive. I'm Madhav Das Gopalakrishnan. Viewers, the medical report of a student from Tripura who was allegedly killed in a racial attack in Dehradun has been accessed by Times Now. This report reveals that the victim suffered bleeding in the brain and injuries in the spinal cord. Remember, 24-year-old Anjal Chakma was stabbed on December 9th. He succumbed to injuries after battling for his life for 14 days in hospital. Now, the investigation has revealed that he was stabbed with a knife and punched with brass knuckles by 6 young men. 5 of them have been arrested, while the hunt is on for the 6th accused. Let's take a quick look at what really the medical report has stated in this entire case. What we're looking at is the fact that Anjal had consumed alcohol. It also says there was bleeding in the brain, damage to the spine. Victim was put on oxygen support. There's a 3-centimeter deep wound on the back. There's an injury above the neck caused by a blunt object. Scratch marks on the foot. No movement in the right limbs. He also lost function in the right side of his body. Nerve injuries later led to his death is what we are told. Now, the brother of the victim, who was present at the spot where the incident happened, reveals the sequence of events. He mentions that the group had hurled racial abuses at them. When they confronted the group, they were attacked. Police, however, have denied this racial attack angle, saying one of the accused was from Manipur, so there's no question of a racial angle to this incident. Listen in. हम लोग गए थे सामान लेने के लिए, तो हम लोग उधर पे तो हम लोग अपना सामान लेते हम लोग के साथ उधर पे उन लोगों का ग्रुप था उधर पे पूरा, तो उन लोग थोड़ा पी रखा था उन लोगों ने, तो उन लोग हम लोग को मेरे को थोड़ा पोक कर रहा था कि मेरे को थोड़ा सा रेसिज्म कर रहा था, तो मैं थोड़ा अपने तरफ से अपना सेल्फ डिफेंस मतलब थोड़ा बोल रहा था कि भैया क्या वो गाली क्यों दे रहे हो, तो उनका वो प्लानिंग था क्या था वो मेरे को पता नहीं, पर उन्होंने डायरेक्ट मेरे में अटैक कर दिया उन लोग ने। तो फिर भैया आया मेरे को बचाने के लिए आया, फिर भैया को मेरे को कड़ा से मारा, भैया लगा उससे, फिर भैया को उन लोगों ने चाकू मार दिया स्पाइन की तरफ में। कोई रेशियल रिमार्क्स है, चूंकि जो भी हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी आई है, ये हमें समझना जरूरी है कि जो दूसरी तरफ से जो अक्यूज है वो भी नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड थे। इसमें एक जो अक्यूज है वो मणिपुर का रहने वाला था और सेकंड वन इज नेपालीज ओरिजिन। तो रेशियल रिमार्क्स की बात नहीं है, एक तरफ से एक पक्ष जो था वो आपस में कमेंट कर रहे थे आपस में, जैसे कहते हैं कि चूंकि इसमें 2 अंडर एज थे, और उस कमेंट में आपस में कमेंट को ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे वो सेकंड पार्टी जो भी अग्रीड पार्टी है उनको लगा कि उनके लिए किया जा रहा है। Chief Minister Dhami has spoken to the victim's father. Meanwhile, he has assured them of swift and strict action in this case. बहुत ही दुखद घटना हुआ, हम बहुत दुखी हैं इससे, और इस पर हमने बहुत सख्त कार्रवाई के लिए कहा है। यहाँ पर 5 लोग जो भी इसमें थे बदमाश, 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जो भी इस घटना में जिन्होंने भी अपराध में किया है। एक कोई नेपाल का था, शायद वो नेपाल भागा हुआ है, कहाँ है, तो उसके ऊपर इनाम यहाँ घोषित हमने कर दिया है, और उसको पकड़ने के लिए भी टीम वहां पर भेज दी गई है पुलिस की ना। All right, and in fact, we are told that in this particular case, opposition has reacted to this video of Uttarakhand Chief Minister. They have accused him of indulging in a PR stunt with Shiv Sena UBT MP Priyanka Chaturvedi, saying that sharing the well-edited video of his interaction with the family reeks of insensitivity. Questions are also raised about whether there's a cover-up attempt by the Uttarakhand police. Let's quickly go across to Mr. Garg, Mr. Chakma, who's joining us at the moment. I believe we have Tarun Prasad Chakma, Angel Chakma's father. Mr. Chakma, thank you so much for joining us. First sawal, what would you say about these reports that are now coming out? Police are saying कि ये racial attack नहीं था, क्योंकि जो attackers थे उनमें भी कुछ students हैं जो मणिपुर से हैं। क्या कहना चाहेंगे आप उनसे? ये इसके बारे में तो सर मुझे मालूम नहीं है, ऐसे मणिपुर का ना कहाँ का ऐसा, लेकिन रहते हैं उन लोग उधर ही चला कोई इलाका में सर। जी, लेकिन आपके जो बेटे हैं उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल रेशियल अटैक था, जिस तरीके से अटैक किया गया, जो गंदी गालियां दे रही थी, क्या बताया गया था आपको? हाँ सर, उधर पुलिस जहाँ पे घटना हुआ सर वहाँ में पुलिस गया था सर, जाके सीसीटीवी फुटेज में देखा था सर, मैं भी देखा था सर। तो वहाँ पे 6 लोग, एक स्कूटी एक बाइक में आया था सर। तो मेरा बच्चे दोनों बाजार करने गया था, तो सब्जी लेके इन लोग वापस
घर जाने वाला था। बड़ा लड़का बाइक में बैठा हुआ था, स्टार्ट किया हुआ था। तो छोटा लड़का वो बाइक का पास खड़ा था, इस बड़ा बाइक का पास। तो मोबाइल में बात कर रहा था सर। तो बात करते करते पे उन लोग वहां से 6 आदमी लोग आया बच्चे के पास। आने के बाद इसको पोक करने लगा, बोला सिंकी मिंकी मोमो ना क्या चाइनीज से बोला था। फिर भी लड़का ने बोला, मैं इग्नोर किया, मैं कुछ देर सूप रहा, कुछ बोला नहीं, बोला बोलने दो को बोल के सर। फिर बाद में ज्यादा बोल रहा है बोल के फिर इसने ये बोला, भैया आप लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं, हम भी इंडियन हैं, ये बोला सर। फिर इसको हमला कर दिया सर। तो पीछे से उसका गर्दन में सिर पे मारा, मार के सीधा नीचे गिरा दिया सर। फिर दूसरा भाई ने फिर बाइक को स्टार्ट किया हुआ था, उसको बंद करके फिर उसको बताने के लिए फिर बोला, क्यों मार रहे मेरा बाइक को। उसको उनको सराहने लगा तो उसी का ऊपर हमला कर दिया चाकू से का। जी, लेकिन इसके कारण क्या था? क्या ये एक हेट क्राइम था? आप क्या कहना चाहेंगे? जो लोग कह रहे हैं कि ये हेट क्राइम नहीं था, रेस और नस्लवाद से जुड़ा हुआ नहीं था, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे को तो इसका बारे में तो मालूम नहीं सर। इन लोग तो एक स्कूटी एक बाइक में मतलब पीछे, मतलब उन लोग जहाँ खा रहे थे सर वहां से 20 गज पीछे इनका बाइक स्कूटी से आए थे सर। इन लोग सीसीटीवी फुटेज में देखा था सर। फिर बाद में उन्होंने जो बाइक वाला था वो पीछे स्कूटी के पास जाके 6 आदमी थोड़ी देर बात किया सर। बात करने के बाद फिर सभी मिल के आया सर ये बच्चे के पास। आने के बाद पता नहीं क्या बातचीत हुआ, सीसीटीवी फुटेज में तो मैं देखा नहीं। आते थोड़ी देर खड़ा हुआ, फिर बच्चे को मारने लगा सर। जी, और जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें, जी बोलिए। मेरे को में से किसी ने भेजा ना क्या उसको, उन लोग तो जानता भी नहीं था बच्चे जानते नहीं उनको कौन है ये। तो क्या वो सिर्फ अपने लुक्स की वजह से उसको टारगेट किया गया था, क्या ये मानते हैं आप? ऐसे हो सकता है सर ना, ऐसे तो पता नहीं सर, इसके बारे में मुझे इतना मालूम नहीं सर। मैं जो सीसीटीवी फुटेज में देखा वही बता रहा हूँ सर। जी, बाकी इसके बारे में इतना जानकारी नहीं है सर मुझे। जी, और आपके यहाँ से ये भी बताया गया है कि जो हॉस्पिटल था जहां ट्रीटमेंट कर दी गई, वहां पे एक ऑपरेशन पहले किया गया, ये बोला गया कि सक्सेसफुल है। क्या आप मानते हैं कि मेडिकल केयर ठीक ठाक से दी गई थी? बोला तो था सर वहाँ में ये 17 तारीख को ऑपरेशन हुआ सर। 18 तारीख को सुबह टाइम में बोला था, मतलब ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ बोल के सर। लेकिन 18 तारीख को सुबह हम बच्चे से अच्छे से बात भी किया था, वो पानी भी मांग रहा था। मैं डॉक्टर से पूछा, सर पानी पी सकते हैं, मेरा बच्चा पानी मांग रहा है। फिर बोला अभी नहीं, बोला 12 घंटा का बाद फिर उसको थोड़ा थोड़ा पानी पिलाएंगे। फिर उसको मैं बच्चे को भी बोला, बेटा अभी मत पीना, डॉक्टर ने मना किया आपको। वो डॉक्टर लोग धीरे धीरे पानी पिएगा, अभी नहीं पी सकते, आपका ऑपरेशन हो रखा है। फिर उसी ने कुछ नहीं बोला, पापा मैं जिंदा रहूंगा, मेरे कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, ये मेरे को भरोसा दिया बच्चा ने सर। जी, फिर बाद में अचानक वही 18 को शाम को सर ऐसे खराब हो गया सर, बोल नहीं सकता। फिर अचानक उसका बात करना बंद हो गया, आधा घंटा ही मिलने देता है सर। आधा घंटा में क्या देखभाल करूँ सर। फिर बाद में बच्चा मतलब रात को 10 बजे के बाद हॉस्पिटल से फोन आया, आप जल्दी आ जाओ, आपका बच्चा का सीरियस कंडीशन हो गया। फिर जाता एकदम बेहोश था सर। ये मुंह में पाइप लगा दिया सर, ऑक्सीजन लगा दिया सर, एकदम बेहोश करके वेंटिलेटर में ले गए सर आईसीयू से। इससे फिर हालत ठीक नहीं हुआ, ऐसे हालत बिगड़ते गया। फिर डॉक्टर लोग बाद में बोला सीटी स्कैन करना पड़ेगा इसका गोला में, नहीं तो उसको गोला में बोला पाइप डालना पड़ेगा ऑक्सीजन लेने के लिए। जब वो 20 तारीख का बात था सर, 2 दिन का बाद। तो फिर उसका बाद फिर ये सीटी स्कैन करने के बाद रात को हमको 10 बजे बोला रहा है, रात को बोला आपका बच्चे का थोड़ा ब्रेन में बोला कोई खून जमा है, उसको स्वेलिंग हो रखा है, तो हम उसके लिए इलाज करेंगे अभी। मैं ठीक है सर, आप अच्छा से इलाज करो, ये बताया मैं। फिर उन्होंने फिर अगला दिन मैं गया, मतलब 11:30 बजे, आधा घंटा मिले थे 11:30 से 12 सर। फिर गया तो उन्होंने बोला आपका बच्चा अभी ब्रेन डेड हो गया, अभी बस नामुमकिन है सर, ये से बोल रहा है सर।
हमने उस वहाँ तब से सर हमारा पूरा दिल खराब हो गया, रोने लगा सर। हमने रोते रोते पूरा मतलब 2-3 दिन तो रोते रहा सर। हम माँ बाप हमने खाना खुना भी सब छोड़ दिया सर। कभी फिर मंदिर में जाने लगा, बोला अभी भगवान से प्रार्थना करो, वो भगवान बता सकते हैं, बोला हमारा हाथ में नहीं है सर। तो आप क्या फिर मानते हैं? हमने मंदिर जी, ये सर ये सर 20 तारीख के बाद 21 तारीख का बात होगा सर, 21 तारीख को होगा सर ये। बट उसके आखिरी वर्ड्स ये थे कि मैं एक इंडियन हूँ। क्या ये कह रहे हैं कि जब उनको अटैक किया गया, उनके आखिरी हाँ, शब्द ये थे कि आई एम एन इंडियन नॉट चाइनीज? हाँ, स्वतः लड़का ने इसे विरोध किया था, मैं इंडियन हूँ, मेरे को चाइनीज क्यों बोल रहे, ये बोला सर। इसीलिए सीसीटीवी फुटेज में मैं सुना नहीं, देखा भी नहीं सर, लेकिन बच्चे ने उनको ये प्रोटेस्ट किया, फिर उसका ऊपर हमला किया बोले। जी, तरुण चकमा जी हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Certainly, of course, very tragic turn of events, and we certainly hope that there is justice at the earliest as far as this case is concerned. Thank you so much for speaking to us, Tarun Chakma, who is of course the father of Angel Chakma. Let's quickly take this across to our reporters. Kritika is with us from Dehradun. Kritika, I believe there are several students who are gathered over there from the various student bodies. What do they have to say about this incident, and what is happening in terms of police investigation? Because if this wasn't a racial attack, then why is it that he had to identify himself as Indian and not Chinese? Right, Madhav, I'm being joined by the Dehradun unit of the Northeast Student Association here, and I'll take your questions straight to the president of the association as well. Rishikesh, tell me, today the SSP has said in a press conference that they're not probing the racial abuse angle. They said that because one of the accused is from Manipur, the other one who's absconding is from Nepal, this cannot be termed as a racial abuse case. I just want to tell that कि ये सब ये रेसिज्म की कारण ही है, क्योंकि अगर रेसिज्म नहीं होता तो वो लोग फॉल बैक नहीं होते। हमने पूरा प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया है, तो उसके बाद हमें पता चला है कि ये पूरा रेसिज्म के ऊपर ही है, और रेसिज्म इसीलिए है क्योंकि अगर रेसिस्ट नहीं करते तो हम नॉर्थ ईस्ट के बच्चे ऐसे हैं, हम लोग ओपनली रिएक्ट नहीं करते किसी भी चीज में। हमको बुरा तब लगता है जब कोई हमें रेसिस्ट करता है, इसीलिए ये रेसिज्म के ऊपर ही है, और हम लोग रेसिज्म के ऊपर ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और हम लोग लास्ट तक इसी के ऊपर ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे। मैं ये भी जानना चाहूंगी, यू आर फ्रॉम त्रिपुरा एज वेल, राइट? आप त्रिपुरा से उत्तराखंड यहाँ पढ़ने आए. डिड यू एवर थिंक दैट सच एन इंस्टेंस विल कम टू लाइट हियर, एंड नाउ दैट द एसएसपी इज सेइंग कि दिस इज ओनली अ केस ऑफ बच्चे आपस में भड़क गए थे, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, हाउ आर यू परसीविंग इट? ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग वो वाला मामला नहीं है। अगर मान लो मैं मर्डर कर दिया और पुलिस लोग इन्वेस्टिगेशंस कर रहा है, तो क्या मैं क्या एक्सेप्ट करूंगा कि वो हमने ऐसे नॉर्मली जाके मारूंगा? कुछ तो हुआ होगा ना उसके बीच में, उसको रेशियल कॉल दिया होगा उसको, तभी तो उसको ट्रिगर हुआ कि क्यों मुझे ऐसा बोला भाई, ऐसा कुछ। तो अभी जो हमने पुलिस लोग भी बोला कि ये कोई रेशियल अटैक वो नहीं है, लेकिन ये रेशियल अटैक ही था। तो मैं भी अगर मैं कल्प्रेट होता मैं भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि Okay, so Kritika, there are some angry voices of students over there denying any kind of insinuation that this is not a racist attack. We'll keep coming back to you for more ground reports. What's some breaking news coming in at the moment? There's a PIL that has been filed, I believe, as far as this case is concerned, in relation to the Tripura students' murder. And of course, this is a PIL that has been filed in the Apex Court. For more on this, let's go across to my colleague Harish, who's joining us. Harish, take us through this PIL. What does it really demand? Yes, that's right, Madhav. Now the issue has reached the Supreme Court through a PIL filed by a lawyer, Anup Prakash Avasthi. He has sought a judicial intervention, expressing concern over increasing number of attacks against racial attacks and racial discrimination against people, Indian citizens from the northeast and frontier regions. It says that a separate commission or a nodal officer should be appointed in each in central government and also in all the states, and very importantly says that racial slur should be termed as a hate crime and a punishment should be prescribed for that, and a special force should be constituted in center and also each state. These are the demands, and it's expected that once the Supreme Court reopens this, PIL will be mentioned before the Chief Justice bench for seeking an urgent hearing. And for the benefit of our viewers, let me read out few prayers. In it, it says, issue a writ in the nature of formulating comprehensive guidelines recognizing
racial slur as a separate category of hate crimes and determine punishment for the Okay, same. so Number we'll have two, to see what direct- view really the court takes as far as that issue is concerned. Harish, thanks so much for joining us with your inputs on the story. Let's quickly, of course, take this across to our guests who are joining us. With us is Kapil Madan, advocate and political analyst. We also have Mathura Dutt Joshi, who's a spokesperson of the BJP in Uttarakhand. Also with us at the moment is Ashok Kumar, former DGP of Uttarakhand. Let me start first and foremost with Mr. Ashok Kumar. Mr. Ashok Kumar, you would have heard the responses of those students there, because the SSP is saying that this is perhaps not an attack inspired by any kind of hate or race crime. And of course, it is a fight between students. The students are firmly denying that. What would you say about what's really taking place, Mr. Ashok Kumar? Is there a cover-up? Yeah, firstly, Uttarakhand is a very peaceful state. Dehradun, such kind of incidents are very, very rare, firstly. Secondly, I have no reason to disbelieve the police. If they are saying that there was a Manipuri on the other side and a Nepali on the other side, so that might be true. Thirdly, what I believe is in all over India, we have a tendency, which is not good. It is insensitivity. We have a tendency that if someone is from South, we call him Madrasi. If someone is from Northeast, we call him Chinky. It is by saying Chinky, probably the person does not mean that you are from China. They're talking about looks, that your looks are chinky. But certainly this is high level of insensitivity. This needs to be stopped. And this might have caused this altercation between the two groups of students. And that is possible. But otherwise, there is no reason to disbelieve the police. There is no reason And it should be stopped. All right. Do you believe Mr. Uttam Chakma is also joining us? He's advisor of the All India Chakma Students Union. Do you agree with the former DGP? He says there's no reason to disbelieve the police when they say that this is a crime that was not because of race, because there was one person of Manipuri origin, one person of Nepali origin amongst the attackers. Do you buy that argument? सर ड्यू योर ऑनर, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि इसमें जो है कितने प्रूफ चाहिए है हम इसको साबित करने के लिए, बिकॉज हम इसको कहते कहते लास्ट 10-15 ईयर्स से हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं और ये बार बार ये इंसिडेंट हो रहा है। उसके बावजूद भी हम लोग इस चीज को डिनाई करते हैं कि हम इस तरीके का ये चीजें नहीं है, बिकॉज दिस इज अ लैक ऑफ अवेयरनेस। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के बारे में आम लोगों को बहुत कम पता है। सपोज हम दिल्ली में बैठे हैं तो कितने लोगों को पता रहता है, क्योंकि जब तक कि ये चीजें ग्रेटर वे में नहीं जाएगा तब तक कि यह आम लोगों को ये धरना रहेगी। क्योंकि ये हम बचपन से फेस करते आए हैं, जब से लास्ट 20-25 ईयर से हम देखते हैं और अब जाके थोड़ा बहुत पहले से रिलैक्स है। उसके बावजूद भी हम इस चीज को डिनाई करते हैं, तो मुझे लगता है उस लेवल पे हमारा उससे ज्यादा दुर्भाग्य नहीं है। क्योंकि हम इस लेवल के होने का बावजूद भी हम लोग ये बात अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते जो सत्य है और तथ्यों के साथ। और कितनी इंसिडेंट है दिल्ली में, 2014 का ले लो, 17 का ले लो, 16 का ले लो, ये चीजें। उसके बावजूद भी हम लोग बीजेपी स्पोक्सपर्सन, आई गॉट योर पॉइंट मिस्टर चकमा। मथुरा दत्त जोशी जी, इतनी सारी घटनाएं हुई हैं दिल्ली में ही, इतनी सारी घटनाएं हुई, 14-17 की घटना हुई, तब भी हम लोग इसको कवर अप करने की कोशिश क्यों करते हैं? अगर रेस क्राइम है और अगर ये रेस क्राइम और हेट क्राइम नहीं है तो ये क्यों कह रहा है विक्टिम अपने आखिरी शब्दों में कि मैं इंडियन हूं? क्यों हो रही है कवर अप? देखिए ये तो मामला इन्वेस्टिगेशन का है, लेकिन ये बात हम बिल्कुल क्लियरली कह सकते हैं कि ये कहीं भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मामला नहीं है, नस्लवाद का कोई मामला नहीं है और न ऐसी कोई। तो सर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये मैं आखिर भारतीय हूं, मैं चाइनीज नहीं हूं? ये आखिरी शब्द क्यों है एंजल चकमा के? देखिए आपने उनके पिताजी का स्टेटमेंट भी अभी सुनाया, ये कहीं क्लियर नहीं है कि उन्होंने ये शब्द कहे हैं। देखिए दो बातें हैं, जो बात हुई है वो निश्चित रूप से दुर्भाग्य। पिताजी सर्टन नहीं है, लेकिन उनके भाई बहुत सर्टन है। आप सुनना चाहते हैं उनके भाई ने क्या कहा? माइकल चकमा ने क्या कहा? सुनना चाह रहे हैं? मैं आपको फिर से सुना सकता हूँ। नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं है, इतनी हमको वो कोई नहीं जांच नहीं करनी है कि हम सुने उसको। लेकिन सरकार बिल्कुल गंभीर है और हमारे उत्तराखंड में इस तरह की ये पहली घटना है। चूंकि इसमें एक नेपाली का इन्वॉल्वमेंट है, 5 इसमें
जो कल्प्रिट हैं उनमें से 5 के 5 को अरेस्ट कर लिया गया है, 2 को जुवेनाइल कोर्ट में उनका ट्रायल चल रहा है। जहां तक नेपाली का मामला है उसके लिए 25,000 रुपए का इनाम भी रखा गया। पुलिस अपना काम कर रही है। जब तक इन्वेस्टिगेशन में कोई चीज बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाता तब तक ये कहना गलत होगा कि नस्लवाद की बात है या जातिवाद। Kapil Madan, respond to that. Till the investigation makes it clear, it's wrong to say that this is a crime inspired by race or inspired by hatred. Respond. Madhav, this is very, very unfortunate. I mean, I've heard, Mr. Joshi very, very closely. I think all I would say is that, it's an elementary criminal law. Once you have a person who has witnessed this incident, once he is making a statement, in fact, you have very categorically pointed out, in fact, his father has also reiterated what he said, what was his last word. And to say, I mean, this is not only, apathy. I think you are now being disrespectful, to the person who has lost his life, because you are discrediting, what he has said, the incident, his own narration of the incident because of which he has lost life. Elementary criminal law is that once you have a direct evidence, once you have a person who has seen, observed, the hate crime and the offense being taking place, you will need to give him prima facie credibility of what has happened. To deny it at the face of it, I think this is shamelessness of the highest order. जवाब दीजिए मथुरा जोशी जी, आप इस तरह डिनाई नहीं कर सकते। अगर हेट क्राइम हुई है तो उसको एक्सेप्ट करिए ताकि समाज में जो भी सुधार जरूरी हो, अपने कानून व्यवस्था में जो भी सुधार जरूरी है वो की जा सकती है। क्योंकि बहुत ही इंसेंसिटिव बात है कि बार बार इसे दोहराया जाए कि इसमें कोई रेस एंगल नहीं है। मैं फिर अपनी बात में हूं, मैं फिर अपनी बात में जोर दे के कह रहा हूं, ये कहीं दूर दूर तक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं है। ये कहना बिल्कुल गलत है। इस तरह की राजनीति करना बिल्कुल गलत बात है। आदरणीय डीजीपी साहब बैठे हैं, पूर्व डीजीपी साहब, ये केवल छात्रों के बीच का झगड़ा है। जो हुआ वो गलत हुआ, हम भी कह रहे हैं। उसमें सरकार की तरफ से तत्काल एक्शन लिया गया, पुलिस की तरफ से एक्शन लिया गया है, इमीडिएट एक्शन लिया गया है। उन लोगों को अरेस्टिंग हुई है, मामला कोर्ट में है, ट्रायल में चल रहा है। उत्तम चकमा जवाब दीजिए। रेशियल क्राइम नहीं है, हेट क्राइम नहीं है, जवाब दीजिए बीजेपी प्रवक्ता का। सर, जैसे कि अशोक सर ने कहा है कि पुलिस ने कोऑपरेट कर रहे हैं डे वन से, मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता हूं इस बात को। वो इसलिए क्योंकि इंसिडेंट हुआ है 29 दिसंबर को, लेकिन एफआईआर बार बार करने के लिए कहा जाता है पुलिस स्टेशन में, लेकिन कोई भी पुलिस उस पर एक्शन लेने को तैयार नहीं, उत्तराखंड पुलिस। उसके बाद यहाँ से दिल्ली से हमारे एक सहयोगी है, ऑल इंडिया चकमा स्टूडेंट यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट विपुल चकमा वहां जाता है, और एक दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल दीपा चकमा वहां पर जाता है। वहां से उनकी बात सुनी नहीं गई। उसके बाद उन्होंने किसी सीनियर आईपीएस ऑफिसर से हेल्प ले करके, मदद से, उनके डायरेक्शन पे तब जाके एफआईआर हुई है। अब इससे ज्यादा और क्या प्रूफ चाहिए सर? पुलिस की, प्रशासन की तरफ से इतना लापरवाही है। मथुरा जोशी जी, आप कह रहे हैं पुलिस की कार्रवाई सब सही चल रही है, एफआईआर तक रजिस्टर नहीं हुआ, शर्म आनी चाहिए आपको। आप ऐसी चीज को डिफेंड कर रहे हैं। देखिए, मैं बहुत ज्यादा देखिए, ये कहना आपका बिल्कुल गलत बात है। मैं इस तरीके की डिबेट में बैठना पसंद भी नहीं करता, लेकिन मैं जो बात कहूंगा अपनी बात में बिल्कुल अडिग रहूंगा। आप ये कैसे कह सकते हैं कि साहब पुलिस ने काम नहीं किया? पुलिस अगर काम न करती, 5 एक्यूज्ड कैसे आपके अरेस्ट हो गए? फिर एफआईआर हुआ, बताइए। मैं मानता हूं अगर डिले हुआ है, मैं मानता हूं उस बात को। मैंने ये कब कहा कि डिले? अरे सर, आप तो कह रहे हैं कि रेसिस्ट अटैक नहीं है। अगर लड़के ने कहा है कि आई एम एन इंडियन नॉट ए चाइनीज, तब तक हमें साबित करना पड़ेगा, तो ये भी सारी गलत है। अरे भाई, आप क्यों इसको तूल दे रहे हैं बेमतलब की बात को? बेमतलब की बात आप कह रहे हैं सर, पूरे इंडिया में रिपोर्ट की गई है, और आप एक प्रवक्ता है रूलिंग पार्टी के, आपको भी रिस्पॉन्सिबल, आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सच को सामने लाया जाए। बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं जिम्मेदार हूँ उस बात के लिए। तो इतनी इंसेंसिटिव कमेंट्री ना करें। मेरा रिक्वेस्ट आपसे है कि इस तरह की इंसेंसिटिव कमेंट्री ना करें, जिसमें पूरे देश में ये इमेज जाए कि आप लोग कवर अप कर रहे हैं। और इस वक्त जिस तरह के आपके बयान आ रहे हैं सर, साफ ये लग रहा है कि कवर अप की कोशिश की गई है। एक रेसिस्ट क्राइम है
और एक हेट क्राइम को आपको पूरी तरह कंडेम करना चाहिए अनिकोवकली, ना कि उसे किसी तरह से कवर अप करना. We'll have to leave it there. Mathura Dutt Joshi, Kapil Madan, Ashok Kumar, Uttam Chakma, leaving it there. An extremely shocking crime, and we certainly hope that there is no attempt at a cover up, and that's exactly what Union Minority Affairs Minister Kiran Rijiju has also said, because the kind of outrage that exists, we will only end up creating more alienation if there is an issue that is not addressed and justice does not follow. Leaving it there. Thanks so much for joining us this evening.